some application problems on trigonometry. Actually, when we see the CBSE sample paper question paper and standard question paper, it's clearly reflected on through those two papers that one question will be asked on CBQ as per the CBSE sample question paper I am talking. So that means what we can think of this may be probably the pattern for your 2023 examination also. So let us not take chance about it. Of course, if CBSE wants, they can change the question also. But still, from the basic and standard sample question paper what is given to us, I personally feel that this question is one of the probable questions for it. This type of questions I mean is one of the probable questions. Now the question reads like this. A group of students of class 10 visited India Gate on education trip. Okay, India Gate चले गए 10वीं क्लास के बच्चे India Gate देखने के लिए. The teacher and the students had interest in history as well. टीचर को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, इसलिए बच्चों को लेकर चले गए इंडिया गेट. The teacher narrated that India Gate's official name Delhi Memorial, originally called as All India War Memorial. So teacher explained about the India Gate, the history of India Gate, and the students that it was called as All India War Memorial. Monumentals and stone arches in New Delhi dedicated the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1918. तो 1914 और 1918 में जो वॉरियर्स का डेथ हुआ था उनके नाम से इसको रखा है, ऐसे टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया. Dedicated to the troops of British India who died in wars between 1914 and 1919. I think it was the era of First World War. First World War के समय जिन भारतीयों ने ब्रिटिश ट्रूप्स में जान गवाई अपनी, उनके नाम से किया. The teacher also said that India Gate, which is located at eastern end often Rajpath, formerly called as King's Hill, is 138 feet high or 42 meters in height. तो टीचर ने उसको बताया बच्चों को कि बच्चों ये कितना बड़ा है, हाई कितना है, ये 42 meters हाई है या फिर 138 feet हाई है. तो this is about the information of India Gate. इंडिया गेट के बारे में इंफॉर्मेशन टीचर ने बच्चों को दिया. तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको स्किप ऑफ करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे भी आ सकते हो. समय नहीं है तो, वरना इसको थोड़ा फास्ट रीडिंग में कंप्लीट करके ये दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन. अब बेस्ड ऑन दिस सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू. तो इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चंस हमें इंटरेस्ट है. What is the angle of elevation if they are standing at a distance of 42 meters? अगर ये लोग 42 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? थोड़ा देखो बच्चों, हाइट ऑफ द वार मेमोरियल कितना है? हाइट ऑफ द वार मेमोरियल कितना है? 42 मीटर्स है, सही है ना? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. इसका हाइट कितना है? 42 मीटर्स. इसका हाइट कितना है? 42 मीटर्स. तो what is asked is, अगर उसका हाइट 42 मीटर्स होगा और डिस्टेंस भी 42 मीटर्स होगा तो आपको पूछा है what is the angle of elevation. Can you tell me what will be the angle of elevation? 45. हाँ? Yeah. Why 45? Yeah. Right. It is right angle isosceles triangle बन रहा है. तो यहाँ पर आप देखो, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC. सो दिस इज 42 बाय दिस इज अगेन 42 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा. सो चिल्ड्रन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1? So children, you have covered the first part. तो अगर इंडिया गेट का हाइट अगर 42 मीटर्स है और उसको 42 मीटर से देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 45 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड, हेंस फाइंड द डिस्टेंस. अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया. उनका ये कहना है कि सर हमको टावर तो देखना है
मगर 60 डिग्री पे देखना है। कितने डिग्री पे देखना है? 60 डिग्री होना चाहिए हमारा ये टॉप ऑफ द टावर। तो क्या पूछा आपको, हम कितना दूर खड़ा रहे, यानी आपको अपोजिट साइड पता है और आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो आप फिर से क्या करोगे, tan 60 आप ढूंढो। तो tan 60 इज इक्वल टू वॉट, AB अपॉन BC। तो tan 60 की वैल्यू है √3, AB की वैल्यू है 42 और BC की वैल्यू आपको ढूंढनी है। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट BC। तो अगर आपको BC चाहिए तो व्हाट विल डू हियर इज BC इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो 42 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। सो दिस विल बी इक्वल टू 42 √3 divided by, so 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So this is how much, 14 √3 meters. तो अगर आपको वो टावर 60 डिग्री पे देखना है तो आपको कितना पड़ेगा डिस्टेंस, 14 √3 पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको क्या पूछा है। तो यहाँ पॉइंट में दिया है बच्चों, तो अगर वैसे ऑप्शन में नहीं आएगा, मगर अगर ऑप्शन में पूछते हैं तो आपको √3 की वैल्यू भी वहां पर दी जाएगी। 14 इंटू 1.732 वैसे भी आप यहां पर कर सकते हो। 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, तो दिस विल बी 14 2s 28 कैरी 2, 14 3s 42 प्लस 2 इज हाउ मच, 44 कैरी 4, 14 7s 98, 98 प्लस 4, 98 plus 4 is 102, carry 10, 14 1s are 14 plus 10, how much, 24, that means 1 2 3, 1 2 3, so 24.28, or you can add 1 here, that will be 24.25 meters आपका आंसर होना चाहिए। तो somewhere around this is the correct answer, नज़दीक के 24 के आसपास का आंसर सही आंसर होगा, मगर √3 की वैल्यू आपको वहां पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द टावर दैट विल कास्ट ए शैडो इज 20 मीटर्स। देखिए, अगर सूरज की रोशनी अगर 60 डिग्री पर है, मान लीजिए यहां पर ये है, यहां पर वो खड़े हैं, सूरज की रोशनी कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। ये तुम्हारा टावर है AB, ये है BC। तुम्हें शैडो कितना चाहिए, तुमको शैडो कितना चाहिए, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर, यानी अगर मुझे यहां पर शैडो 20 मीटर चाहिए तो इसका हाइट कितना होगा। अब वो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वो देखने के लिए गए उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि सर हम किसी मॉन्यूमेंट के सामने अगर खड़े हैं और एंगल ऑफ सन इज 60 डिग्री, तो आपको ये पूछा है कि ये अगर 20 मीटर होना चाहिए तो उस टावर का हाइट कितना होना चाहिए। यानी आपको ये अपोजिट वाला साइड पूछा है, ये आपको फिक्स दिया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गेटवे ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अ टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है ये। तो यहां पर होगा tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन, तो tan 60 इज हाउ मच, AB वी हैव टू फाइंड आउट, BC इज हाउ मच, 20, BC इज हाउ मच, 20। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 20 √3। तो ये डिस्टेंस आ रहा है कितना, 20 √3, या फिर हमने उसको डेसिमल पॉइंट में भी ढूंढा है। नेक्स्ट आता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। अब मुझे बताओ, अगर उसका किसी ऑब्जेक्ट का हाइट और उसका शैडो अगर सेम हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा।
अभी हमने किया ना प्रॉब्लम, यहाँ पर जो 42 वाला पहला प्रॉब्लम था वैसी है वो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का हाइट और उसका शैडो सेम होता है, दैट मीन्स इट्स परपेंडिकुलर साइड एंड द डिस्टेंस इज सेम. So if the ratio of the opposite side and perpendicular base is same, then that angle of elevation will be equal to how much? 45 degree. It's not a big guess actually. So it will be right angled isosceles triangle. I told you many times. आपको कितनी बार मैंने बताया था. तो क्वेश्चन वहां पर क्या पूछा है? If the ratio of length of a rod and its shadow is 1:1, then find the angle of elevation of the sun. The angle of elevation of the sun has to be 45 डिग्री. ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वैसे पूछे तो पूछ सकते हैं. द एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस एंगल को? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. अगर ऊपर है तो या द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जेक्ट बिलो द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिप्रेशन. और ऊपर अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऐसे बोलते हैं. तो ये 4 क्वेश्चंस जो है आपको पूछा है इसके ऊपर. ओके, तो मोटी मोटी बातें आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगर ये हाइट और शैडो का हाइट सेम है तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा. और अगर वो पूछते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे को 60 डिग्री चाहिए हमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे पूछा अगर है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? फिक्स्ड है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. डू यू अंडरस्टैंड? ओके.